Hello students, welcome back to online session. See, in today's session we are going to see the rights of consumer. On 15th March 1962, the then president of US, JF Kennedy, USA declared certain rights of consumer. Therefore, it is observed as World Consumer Day. See, 15th March is observed as World Consumer Day. Rights of consumer are an integral part of our day-to-day life. जो कंज्यूमर जो राइट्स है कंज्यूमर की वो हमारे डे टू डे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ का. कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट कंज्यूमर. कंज्यूमर जो राइट है इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर. अभी कंज्यूमर राइट से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर. Rights of consumer. The success of any campaign depend on consciousness and awareness of people for whose the cause movement is organized. See, किसी अगर आप कोई भी कैंपेन स्टार्ट करोगे तो वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है, वो डिपेंड करता है कि उस कैंपेन को लेके कितना उस कैंपेन को लेके लोग कितने कॉन्शियस है और कितना अवेयरनेस क्रिएट हो पा रहा है, which is the main cause the movement is organized. Consumer right play important role in protection and safety. जो consumer right है ये बहुत important role play करता है protection and safety में. The business aim should be to meet the need of consumer and to provide full satisfaction. See, जो business का aim है, business का aim क्या है? To meet the need of consumer. consumer की needs को पूरी करना and to provide full safe satisfaction. उनको पूरा सेटिस्फैक्शन भी देना along with safety. Every consumer should be aware of his right and use them in his daily life for protection. See, सारे कंज्यूमर जो है, जितने भी कंज्यूमर हैं उन सबको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए and they should use it in daily life for protection. Consumer have to fight for their rights and put pressure on business, manufacturer and trader for safeguarding their इंटरेस्ट से. जो कंज्यूमर है उसको अपने राइट का पता होना चाहिए एंड अगर आपको आपके राइट का पता है तभी आप जाके क्या कर सकते हो, अपने राइट्स के लिए आप फाइट कर सकते हो. आप सामने वाले पे, बिजनेस पे प्रेशर डाल सकते हो, बिजनेस पे, मैन्युफैक्चरर पे, ट्रेडर पे आप क्या कर सकते हो, प्रेशर डाल सकते हो फॉर सेफगार्डिंग आर राइट. अभी ये सारे जो है वो कंज्यूमर राइट्स है. राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, right to choose, right to be heard, right to consumer education, right to represent, right to redress, right to healthy environment, right to protect from unfair business practices, right against spurious goods. So these are the rights of consumers. So first one is right to safety. See, we are going to see the rights of consumer in two parts. Today we are going to see half and on the next day we are going to see the half part. See, first one is right to safety. The right protect consumer against production process and services which are hazardous to health or life. It include concern for consumers long term interest as well as their immediate requirement. According to this right, consumer must get full safety and protection in his life and health. This safety should be in relation to medicine, electrical appliances, food, etc. The Government of India has given safety standard in form of AGMARK, ISI, BIS, Hallmark, etc. See, ये जो राइट है, इस राइट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड गेट प्रोटेक्टेड against production process and services which are hazardous to health or life. से ये राइट के हिसाब से कंज्यूमर को या उसके हेल्थ को, कंज्यूमर के प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट. कंज्यूमर को फुल सेफ्टी मिलना चाहिए एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ. This safety should be in relation to medicine, electrical appliances, food, etc. See, ये जो right to safety है ये किसके रिलेटेड है? ये मेडिसिन जब ये आउटडेटेड हो जाता है, मेडिसिन जब उसका एक्सपायरी डेट हो जाता है तो उसका जो इफेक्ट है वो रिवर्स होता है, राइट. तो ये जो सेफ्टी मेजर्स है ये इन टर्म्स ऑफ रिलेशन होना चाहिए कि उस पर प्रॉपरली उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए. अभी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है
इन केस अगर कुछ हो जाता है, इन केस अगर कुछ गड़बड़ होता है, तो व्हाट कुड बी द रेमेडी, व्हाट शुड बी द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विद सेफ्टी मेजर्स। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि क्या सेफ्टी मेजर्स है, अगर कुछ गलत होता है तो क्या करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन सेफ्टी स्टैंडर्ड इन फॉर्म ऑफ एगमार्क, ISI, BIS, हॉलमार्क एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड दिया है, एगमार्क है, ISI है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए है, हॉलमार्क है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को पूरा हक है, उसकी हेल्थ, उसका प्रॉपर्टी सब कुछ सेफ रहे अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट से सेफ रहे। तो ये ध्यान में रख के जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको भी कंज्यूमर के लाइफ, उनको भी मतलब ये ध्यान में रख के जो कंपनीज हैं, दे शुड नॉट डू एनीथिंग, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कंज्यूमर के हेल्थ पे इफेक्ट पड़े, कंज्यूमर के हेल्थ को डेंजर में आए, कंज्यूमर की लाइफ डेंजर में आए। तो उनको ये सब सेफ्टी मेजर्स लेना ही है। Next is right to information. According to this right, consumers should be provided with adequate, sufficient information about all aspects of goods and services like price, name of manufacturer, content use, batch number if any, date of manufacturer, expiry date, user manual and safety instruction. This right also enable consumer to select right product or service. It applicable to food product, medicine, spare part or any other consumer product or service. See, according to this right, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विद एडुकेट इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स के बारे में कंज्यूमर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, उसके प्राइस के बारे में, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, किस कंपनी ने उसे प्रोड्यूस किया है, कंटेंट यूज्ड, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग शुड बी गिवन सो दैट कंज्यूमर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। सी, ऐसा होता है ना कि अभी हम लोग जो कंज्यूमेबल जो गुड्स होता है, कंज्यूमेबल जो कंज्यूमर गुड्स जो होता है जिससे हम डायरेक्ट कंजम्पशन करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल आर एलर्जेटिक, दे आर हैविंग सम एलर्जी टू सम थिंग्स, राइट। तो अगर वो इंग्रेडिएंट उसमें है एंड फिर उसको उनके हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कैसा है कि वो इंग्रेडिएंट जब प्रॉपर दिया होगा तो इससे कंज्यूमर डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या प्रोडक्ट लेना है। प्राइस रहेगा तो कंज्यूमर को ऑप्शन मिलेगा, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से वो सिलेक्ट कर सकता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन कंज्यूमर राइट है जो जिससे कंज्यूमर को बहुत हेल्प मिलता है। इट इज एप्लीकेबल टू फूड, ये कहाँ एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विस। सी, सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर को पूरा हक है सेफ रहने का, किसी भी प्रोडक्ट से उनके हेल्थ को, लाइफ को, उनके प्रॉपर्टी को डेंजर नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी लुक आफ्टर बाय द मैन्युफैक्चरर को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उससे कंज्यूमर के हेल्थ, उसकी लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो अभी देखा है हम लोग ने। यहाँ पे कंज्यूमर को हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से वो सिलेक्ट कर सके सही प्रोडक्ट। इट इज एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विसेज। नेक्स्ट इज राइट टू चूज। सी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नहीं ये राइट जो है ये सबका राइट है। अभी कोई भी जो सेलर है, ही कैन नॉट फोर्स यू, ही कैन नॉट इंड्यूस यू टू बाय समथिंग। वो आपको कोई भी चीज़ परचेज करने पे वो फोर्स नहीं कर सकता है, आपको मतलब मजबूर नहीं कर सकता है। ये this is your right that you can select your product from multiple choice। आपको पूरा हक है हर प्रोडक्ट देखने का, और नहीं पसंद आया तो आप उसको नहीं परचेस करोगे। तो ये कंज्यूमर का राइट क्या है, कंज्यूमर का राइट टू चूज है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंज्यूमर हर चीज़ अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट चूज कर सकता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से उसको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। The choice available to Indian consumer across the basket of goods and services have multiplied, like telecommunication, travel and tourism, banking, electronic, fast-moving consumer, etc. According to this right, consumer should be given full freedom to select an article as per his requirement, liking and purchasing capacity। जो मैंने बताया, ये right के हिसाब से consumer को पूरा freedom है, वो
कोई भी आर्टिकल अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने लाइकिंग के हिसाब से परचेज कर सके। द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अभी जो राइट टू चूज है, जो ये कंसेप्ट है, किससे रिलेटेड है? फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एज पर दिस राइट द सेलर कैन नॉट कंपेल कंज्यूमर टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड हेंस मोनोपोली इज प्रिवेंटेड। ऐसी ये राइट के हिसाब से जो जैसे मैंने बताया आपको, सेलर जो है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता है, आपको कंपेल नहीं कर सकता, किसी भी तरह से वो आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही परचेज करना है। और इस राइट के हिसाब से मोनोपोली जो है वो मोनोपोली इज प्रिवेंटेड। एक सिंगल सेलर वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, मोनोपोली प्रिवेंटेड है। आप मल्टीपल ऑप्शन में से आप अपना चॉइस का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। अब इंडियन कंज्यूमर जो है वो उसको अक्रॉस द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है मल्टीप्लाइड। मतलब अभी जो हमारे पास चॉइसेस है वो बहुत बढ़ गई है, बिकॉज एलपीजी की वजह से फॉरेन कंट्री से भी गुड्स आपके मार्केट में आ रहा है। तो यू डोंट हैव टू, you cannot be, nobody can force you to purchase प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देम। आप अपनी चॉइस से, अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर। According to this right, consumer have opportunity to voice their complaint to consumer forum. Consumer also given suggestion to manufacturer or trader or certain matters such as quality, quantity, price, packaging, etc. Nowadays consumer can file online complaint through पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन से। ये राइट के हिसाब से, ये अकॉर्डिंग टू दिस राइट, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर। अगर नहीं कर रहे वो लोग, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट टू कंज्यूमर फोरम। ये राइट के हिसाब से कंज्यूमर जो है वो उसका कंप्लेंट वो क्या कर सकता है? कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में वो जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो हर एक बिजनेस है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके कंप्लेंट को सुने और सॉल्व करे। एंड अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है तो कंज्यूमर को राइट है, और कंज्यूमर के पास अपॉर्चुनिटी है टू वॉइस देयर कंप्लेंट टू कंज्यूमर फोरम। वो अपनी कंप्लेंट कहाँ लेके जाए? कंज्यूमर फोरम में लेके जाए। कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशंस टू मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर ऑन सर्टेन मैटर सच। कंज्यूमर जो है वो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर को वो सजेशंस भी दे सकता है on matters such as quality, quantity, price, packaging, etc. Nowadays, consumer can file online complaint through portal और mobile application. See, यहाँ पे हमने पहला दिखा है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर को पूरा पूरा हक है सेफ रहने का। किसी भी प्रोडक्ट से कंज्यूमर के लाइफ को, कंज्यूमर जो की लाइफ जो है, कंज्यूमर लाइफ, उसका प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी लुक आफ्टर बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। It includes concern of consumer long-term interest as well as their immediate requirement. According to this right, consumer must get full safety and protection to his life and health. कंज्यूमर को पूरा सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उसकी लाइफ और हेल्थ को। ये मतलब किस, जैसे कि देखो जो मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ये बहुत, इससे बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है कंज्यूमर को। सीवियरली वो इंजर्ड हो सकता है, सीवियरली वो उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। तो ये राइट टू सेफ्टी के हिसाब से कंज्यूमर को राइट है कंप्लीटली सेफ रहने का। और बिजनेसमैन को भी ये देखना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को ये देखना है कि उनके प्रोडक्ट से कंज्यूमर को बिल्कुल भी हार्म ना हो। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर को राइट है हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन मिलने का। तो इसी फिर ये राइट के अकॉर्डिंग ही आपको जो मैनुअल मिलता है, आपको जो कवर पे जो डिटेल्स मिलती है, वो डिटेल्स आपको इसी राइट के हिसाब से मिलती है। कंज्यूमर को पता होना चाहिए प्राइस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज़ों का यूज़ हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है तो उस पर प्रॉपर मैनुअल होना चाहिए कि हाउ यू हैव टू यूज़ इट। तो ये राइट के हिसाब से ही जो आपको पैकेट पे जो प्रोडक्ट के पैकेट पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो यही राइट के हिसाब से मिलती है। नेक्स्ट है राइट टू चूज। आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन में से आपको चूज करने का, सेलेक्ट करने का आपके पास हक है, एंड ये आपको मिलना चाहिए। राइट टू चूज आपका बेसिक राइट है, जो किसी भी सेलर को बिल्कुल भी इस राइट का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर जो है, अगर उसकी कंप्लेन है एंड वो सॉल्व नहीं की जा रही है, तो कंज्यूमर को राइट है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी, कंज्यूमर जाके अपने कंप्लेन को वो कंज्यूमर फोरम में फाइल कर सकता है। तो अपना जो उसका जो प्रॉब्लम है वो वॉइस आउट कर सकता है बाय
complaining to the consumer forum. See, the remaining part we are going to see in the next lecture. So with this, I would like to end this session. Thank you.